लिए कंटिन्यूएशन एंट्री। So here is the anatomy of the trade setup. Using the continuation entry during a reversal trade through an intraday pattern formation. Step 1. You first need to identify a reversal trade setup, or what we call a trigger event, to give you your directional bias and momentum for the trade. Step 2. You need the breakout trend change confirmation that validates the trade setup. And step 3. Look inside of this new moving uptrend on a lower time frame for any pattern to form, followed by a break above before taking a long continuation entry. So let's show this right on the charts. This is the daily time frame. So again, step 1 is to identify a reversal trade setup to give you your directional bias and momentum for the trade. This here is where your reversal trade setup occurred. You had your key level because of this reversal point. And then when price came back down, you had multiple long candles at the support level. This is also a double bottom, all of which gives you a reversal long trade setup. Now, after you had the reversal setup, you need step 2, which is identify a breakout trend change confirmation that validates your trade setup. The reason you need this step is because don't forget that this is a strong moving downtrend, and price can form the double bottom and still continue on down. A breakout trend change confirmation means you look for any form of price action that signals a trend change from a downtrend to an uptrend. In this case here, you had this massive bullish momentum candle form right off of the key level and price forming a higher high price movement. All of अब ये जो बता रहा है 3 चीजें बता रहा है यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि प्राइस डाउन आ रहा है और एक डब्ल्यू बनाया है इसने, ठीक है जी, यानी डबल बॉटम जिसको बोलते हैं। और साथ में एक चीज ये बता रहा है कि इसने एक बड़ी सी कैंडल का मूवमेंट दिया है ग्रीन का, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बायर ज्यादा हेवी है ना। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे की लेवल निकल के आ रहा है ये, मतलब कि कह सकते हैं सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। सपोर्ट ना। हाँ, तो उस हिसाब से 3 चीजें बता दी इसने। पहला डब्ल्यू बन रहा है, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, तीसरा यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट है। तो उस हिसाब से एंट्री कैसे ली जाए। this acts as your breakout trend change confirmation from a downtrend to an uptrend. But more importantly, it signals that true heavy buying presence has actually entered the market. So before moving to step 3, to recap, steps 1 and 2 served 2 key purposes. 1, to give you your directional bias to trade in. And in this case, that direction is up. So we want to look for long trade entries exclusively so that you can trade with this new uptrend. And 2, to give you momentum in the direction you want to trade in. Momentum means price can move further and not just a slight bounce. And obviously, the further price moves, the more money you can make from the trade. To be even more specific, the initial trade setup creates momentum as a result of sellers closing their short positions here and new buyers opening new long positions. This double action that occurs during a trade setup is what gives you your bullish momentum, your long and up directional bias, and is also what we call a trigger event. Now, your traditional reversal entry could have been right here after you had the trend change confirmation momentum candle, which is fine and a great entry point. But now, this continuation entry gives you another entry point into a moving trade. This then takes us to step 3, which is to look inside of this new moving uptrend for any continuation pattern to form so that you can ride this bullish momentum and find long entries. Now, a very key point, before you look inside, you have no idea what you will find. अब ये बोल रहा है कि आप अब ये 3 चीजें तो अपन को कंफर्मेशन मिल गई यहाँ से, ठीक है जी। अब चौथी चीज अपन को देखनी है कि जो ये कंटिन्यूएशन चीज चल रही है इसमें एंट्री फाइंड करनी है अपन को, एंट्री कहाँ ली जाए एग्जैक्ट, ठीक है जी। अभी बताएगा कैसे ली जाएगी एंट्री। If you will find anything at all, but the key here is knowing to look. So let's pull up the 8-hour time frame and put it beside this one. So on the left is the daily time frame we just looked at, and on the right is the 8-hour time frame of the same asset. Again, on the left, you identified step 1, which was your reversal trade setup here, and is this same area here on the 8-hour time frame. Your step 2 breakout trend change confirmation here is this same area here on the 8-hour time frame. This then brings us to step 3. While this new moving uptrend was occurring, you were waiting and seeing if you would get any continuation pattern to form. It could have been any pattern from this list. But in this case, we had this perfect falling wedge pattern. Then once you had the break above and in the same direction of the larger moving uptrend and bullish momentum and price making a higher high, this confirms the consolidation is over and that the upwards bullish momentum will continue. And this is अब इसने क्या किया कि जो ये डेली का टाइम फ्रेम था, ठीक है जी, इसको उसने 8 आवर के टाइम फ्रेम में खोल दिया। 8 आवर के टाइम फ्रेम में जब इसने खोला तो फिर ये वाली जो चीज थी वो तो यहाँ पे ये रही, है ना। अब इसको एंट्री चाहिए, तो एंट्री के लिए कोई एक पैटर्न ढूंढ रहा है, पैटर्न के हिसाब से एंट्री ले रहा है, ठीक है जी। तो अब अपन यहाँ पे एक काम वो कर सकते हैं, इधर जो एक इधर के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये वेज बता रहा है, वेज, राइजिंग वेज। राइजिंग वेज कैसे हुआ, अप डायरेक्शन में, और प्राइस ने
ऐसे करके ऐसे वो किया और उसके बाद ब्रेकआउट हो गया यहाँ से ये। तो अभी देखते हैं एंट्री कहाँ लेगा, मेरे हिसाब से तो यहीं कहीं लेनी चाहिए उसको, इधर। और देखते हैं। when you would look for an exact long entry point through the lower intraday timeframes using our key entry and exit strategy. So to answer a question you probably have, why use a continuation entry? First, it acts as a more secure entry point. Evidently, you could have entered right at the initial entry point here, which is perfectly fine. But this second continuation entry is a more secure entry point, as you're entering into a moving trade with a confirmed directional bias and confirmed directional momentum. Second, you get around false breakouts. So if price forms the reversal pattern and you enter long right away, you might sometimes notice that price will move up slightly before reversing. This is a false breakout. By waiting for a continuation pattern to form, or to be more specific, by waiting for the consolidation to occur and end through the break above the pattern, this allows you to get around the false breakout. And third, to scale into a winning trade. ये बोल रहा है कि अपन को वहां एंट्री क्यों लेनी चाहिए, वहां एंट्री के रीजन बता रहा है। जो राइजिंग वेज बनाया ना वहाँ, उस जगह पे एंट्री क्यों ले रहा है। पहली चीज तो ये वहाँ पे सिक्योर एंट्री पॉइंट है, यानी कि इससे पहले जो डब्लू बना था यहाँ पे, ऐसे डब्लू बना था, अगर आप यहाँ कहीं पे ले लेते एंट्री तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता है ऐसा फॉल्स ब्रेकआउट दे करके फिर नीचे आ जाए, क्योंकि पहले से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, ऊपर से डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे डब्लू तो बना दिया, बट ये एक फॉल्स ब्रेकआउट दे यहाँ पे और फिर से नीचे चलने लग गया। तो इसलिए इसने क्या किया कि ब्रेकआउट का वेट किया और उसके साथ साथ जो है एक पैटर्न का वेट किया, मतलब पैटर्न भी बन रहा है वहां पे। और देखा जाए तो एक यहाँ पे सपोर्ट बना था, इधर रेजिस्टेंस, इधर कहीं रेजिस्टेंस था, और फिर यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है फिर से। तो 3-4 चीजें कंफर्म हो रही है, तो उस वजह से जो है ये सिक्योर एंट्री पॉइंट है। दूसरा है टू गेट अराउंड फॉल्स ब्रेकआउट वाला जो मैंने अभी बताया वो। और तीसरा है टू स्केल इनटू ए विनिंग ट्रेड। इसकी बताएगा क्या बताता है, देखते हैं। If you entered already through the initial breakout and are running with a profitable position, you can re-risk your current winnings into this continuation entry. This is also known as scaling into a winning position. So going in the opposite direction, this works the same, except everything is flipped. You identify a reversal trade setup. Then your breakout trend change confirmation. Then you look for an intraday pattern followed by a break below in the new downtrend direction before looking for short continuation entries. Now, moving on to the next continuation variation. So before we continue, we have a very important question for you. Do you want us to only make more trading related videos, or do you want us to cover more broad topics such as hit the like button, subscribe, and turn on the notifications bell to stay notified about a lot of big projects we have on the way. So continuation entry 2. Using a continuation entry during a reversal trade through an intraday trade setup. Step 1. You again first need to identify a reversal trade setup and trigger event to give you your directional bias and momentum for the trade. Step 2. You need the breakout trend change confirmation that validates the trade setup. And step 3. Look inside of this new moving uptrend on a lower time frame for an intraday long trade setup. So let's show this right on the charts. So this is the same setup we previously showed you, except now, instead of finding an intraday pattern, you would look for an intraday trade setup instead. On the left is the daily time frame. Again, step 1. You identify your reversal trade setup here through this double bottom pattern. Step 2. You add your momentum candle and higher high. Steps 1 and 2 give you your bullish directional bias and bullish momentum. So you want to trade with this bullish momentum and moving uptrend. This then takes you to step 3, which is to look inside of this new moving uptrend, but instead of looking for an intraday pattern, you would look for an intraday long trade setup. So on the right is the 8-hour time frame of the same asset. Your trade setup here from the daily is this same area here on the 8-hour time frame. अब ये बोल रहा है कि पहले तो अपन इसके कंफर्मेशन से ले रहे थे कि यहाँ पे भाई पैटर्न बन रहा है ऐसे, वो पैटर्न के कंफर्मेशन से ले लेंगे। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि हम इसका यूज ना करके और थोड़ा अच्छा तरीके से यूज करेंगे। उसमें क्या है, पहली चीज तो इसका यूज करेगा जो लाइन सी जा रही है ए में, और दूसरी जो चीज यूज करेगा ये आगे एक फिब का यूज करेगा। उससे क्या है, और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी अपनी एंट्री, जो है एंट्री एक्यूरेट हो जाएगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, पहला तो ये तो चलो अपन को पता लग गई कि डाउन आ रहा है और यहाँ पे डब्ल्यू बना दिया इसने, ठीक है जी। अब यहाँ पे हो सकता था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया और फिर से नीचे चलने लग जाए, है ना, लेकिन ये नीचे नहीं गया, अभी ऊपर जा रहा है। बट अपन ने तो एंट्री मिस कर दी। यहाँ पे अपन यहाँ ले सकते थे एंट्री, या फिर यहाँ ले सकते थे, कहाँ ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे नीचे। लेकिन अगर अपन को और एक्यूरेट एंट्री चाहिए, मतलब अपन को एक बड़ा मूव देखना है कि भाई प्राइस अब ऊपर ही जाता रहेगा,
कहाँ तक, नेक्स्ट अपने रेजिस्टेंस तक। तो उसके लिए क्या करना है भैया, ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए अपन को, जितने ज्यादा कंफर्मेशन होंगे उतनी ज्यादा बढ़िया रहेगी। यहाँ पे क्या है कि डब्ल्यू का कंफर्मेशन मिल रहा है और की पॉइंट मिल रहा है, मतलब सपोर्ट लेवल मिल रहा है। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन हो गए, लेकिन एक फॉल्स ब्रेकआउट के चांस थे यहाँ से, कि फॉल्स ब्रेकआउट होकर के वापस नीचे चला जाए। तो इसने क्या किया, इधर एंट्रिंग ना लेकर के वेट किया, और वेट कर जो है ये एक मूवमेंट आने का वेट किया इसने। अब इस मूवमेंट में ट्रेड लेगा, किस हिसाब से लेगा वो देखते हैं अपन। Again, you are looking inside of this new moving uptrend, but on this lower time frame for a continuation long trade setup so that you can trade with this bullish momentum. And that continuation trade setup occurred right here at this area of confluence. You had your support level because of these three reversal points, trend line here that crossed, your moving average that crossed, your fib zone and area of value that also crossed. And once price reached the area of confluence, you had multiple long wick candles reacting to the level. Then, once you had a break above and higher high, this confirms that the pullback is over and that the larger moving uptrend. समझिए भाई, इसने क्या है कि तीन चीजों का इंफॉर्मेशन लिया। पहली चीज तो यहाँ से इसने लाइन खींच दी, ट्रेंड लाइन, जो कि सपोर्ट बनाते हुए जा रही है अच्छा खासा। और दूसरी चीज इसने क्या है, एमए लगा दिया। एमए का जो है यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा था, लेकिन उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं आ रहा था यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है सर, तो इसने क्या किया, थोड़ा सा और वेट किया, और यहाँ पे एमए का जो है परफेक्ट सपोर्ट आ रहा है। ठीक है जी, तो पहली चीज तो इसने ये चीज इसका ले लिया कंफर्मेशन, दूसरी चीज इसका ले लिया कंफर्मेशन लाइन का, और तीसरी चीज इसने फिबोनाची ला के देखी तो उसका भी लेवल यहीं पे निकल के आ रहा है। ठीक है जी, और चौथी चीज अगर देखी जाए गौर से, तो देखोगे आप यहाँ पे बड़ी बड़ी विक बन रही है। विक यानी कि जो कैंडल का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो बड़ी बड़ी विक बन रही है। तो यस। इसका मतलब, हाँ जी, ये तो इसका मतलब क्या, और हर एक कैंडल बन रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में है। तो इसका मतलब ये हुआ हाँ, कि, यानी यानी कि हाँ बायर्स अप्रोच ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, यानी कि सेलर्स नीचे तो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर क्या, उनको वापस हाँ, ऊपर घसी खींच ले रहे हैं कि भाई नहीं, ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। तो अब ये क्या है, फिर यहाँ से एक बड़ा मूव दे सकता है हमको। तो अपन यहाँ पे चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, इधर एंट्री ले लो, इधर अपना ऐसे लग लो लास्ट वीक पे यहाँ, और टीपी रख दो 2 आर पे, है ना। सिंपल सा 2 आर टीपी लेके चल रहा है अपन को ये नहीं, या फिर एक और काम कर सकते हो, जहां पे रेजिस्टेंस आ रहा हो ऊपर कहीं पे, वहां पे रख लो टीपी। लेकिन मेरे हिसाब से 2 आर टीपी रखो, सबसे बढ़िया चीज है बिगनर्स के लिए, है ना। तो ऐसे करके अपन इजी ले सकते हैं, इसको चार्ट में भी देख लेंगे एक बार। Can continue. And this is when you would look for an exact long entry point through the lower intraday timeframes using our key entry and exit strategy. Now, what is the purpose of this intraday continuation trade setup? And what does it tell you in terms of price action? It shows continued bullish momentum caused by new buyers entering the market at this intraday long trade setup, which helps continue the push upwards and again helps avoid a possible reversal of the uptrend after you enter a long trade. This is also a form of pullback entry. So going in the opposite direction in an uptrend, this works the same. You identify a reversal trade setup, then your breakout trend change confirmation, then you would look for an intraday short trade setup. So now on the charts. On the left is the 12-hour time frame. Step 1, you had your key level here. ऐसे ये बता रहा है कि डाउन में कैसे लेनी है। अब डाउन में लेने के लिए जो है, इसने क्या किया है कि ये 12 आवर का टाइम फ्रेम है, और ये इससे कम का होगा शायद, है ना। तो 12 घंटे के में क्या हो रहा है कि अपन को यहाँ पे पता नहीं चल पा रही है, इसकी भी कैंडल बनी है, इसकी भी बनी है, इसकी भी बनी है ना। तो इसने थोड़ा छोटा करके देख लिया उसी चीज को। जब इसने छोटा किया तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं अपन का रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है, बहुत बढ़िया। यही तो निकल के आएगा। रेजिस्टेंस अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल यस सर। मल्टीपल कनेक्ट होने चाहिए अपने, है ना। तो मल्टीपल किस किस पे हो रहे हैं, इसका भी हो रहा है, और इस वाली कैंडल का भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी, सबका हो रहा है ना। ये तो फेक आउट कहलाएगा, खैर ऊपर वाला जो है। अपन को मल्टीपल कनेक्ट होने चाहिए, वो एवरेज लेना है। तो ये जो अपन ने एवरेज ले लिया यहाँ पे, ये निकल के आएगा अपना रेजिस्टेंस लेवल, है ना। उसके बाद में इसने जो 12 आवर का टाइम फ्रेम था उसको और छोटा करके इसमें फिर वो लगा रखा है, सॉरी एमए लगा रखा है ना। तो अब यहाँ पे क्या चीजें कंफर्म हो गई, पहली चीज कि रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है सर। कंफर्म हो गया।
हाँ, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो 1 2 3, ये क्या चीज है? ट्रिपल टॉप। पढ़ाया था ना हाँ, मैंने ट्रिपल पैटर्न। टॉप। ट्रिपल टॉप ये, ठीक है जी। और अगर और ध्यान से देखोगे तो इसने जो है यहाँ पे एक फिब लेवल भी लगा रखा है। फिब कहाँ से लगेगा? हाई से लो लगेगा, है ना। तो रीसेंट अपनी यस। कौन सी थी स्विंग? रीसेंट ये वाली थी ना। अगर हम यहाँ से ये वाला चार्ट ना बना हो तो, ठीक है, रीसेंट ये वाली थी। हम्म। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक लगाएंगे, लो तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब अपन लगाया तो इसका लेवल कहीं ना कहीं इधर निकल के आएगा, इधर, है ना। तो इसने क्या किया कि पहले वाले पे ना कंफर्मेशन लेते हुए जब दूसरी विक बनी, ठीक है सर, जब दूसरी बनी तो उसमें इसने ज्यादा उसको प्रेफर किया है। क्यों किया है? उसका रीजन ये है, मैं बताऊं आपको क्या है। दो, आप ध्यान से देखना। अगर मैं फिब मान के चलो यहां से लेकर के और यहां तक लगाता, यही तो हुआ इसका लो, है ना। ये हाई हो गया और ये लो हो गया। तो उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले ये हो रहा था कि ये लो बनना था, ये हाई बनना था, फिर ये लो बनना था, फिर ये हाई बनना था, राइट ना। लेकिन जब इसका लो टूटेगा, ये वाला जो लो है, प्रीवियस वाला लो टूटेगा, तभी तो अपन इसको हाई मानेंगे, है ना। इसको यस। हाई और इसको लो मानेंगे, तभी तो ट्रेंड चेंज होगा ना। यस। और अगर छोटे एरिया में देखें, अगर हम इसको छोटे एरिया में देखें तो फिर यहां से ऐसे करके ऐसे भी बन रहा है, राइट ना। ये लो, ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। तो इसका लो अगर छोटे के हिसाब से देखोगे तो इसका लो ये है ना। ये टूट रहा है छोटा वाला लो, और काफी एकदम उससे टूट रहा है, एग्रेसिव तरीके से। मतलब बहुत तगड़े तगड़े सेलर्स है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज आ जाएगी फिर, क्या? एक सपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे। क्यों आएगा? क्यों आएगा ये सपोर्ट? क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं मल्टीपल पहले। मल्टीपल और वो है। हाँ, मल्टीपल भी है, बहुत सारी कांड हो रखे। तो इसने क्या किया कि इस वाले लेवल को ब्रेक होने का वेट किया। ये जो मेन लेवल है ना, ये मल्टीपल पॉइंट जहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, इस वाले लेवल को ब्रेक होने का हाँ। वेट किया तो नीचे आया। इसने इस वाले को वैलिड नहीं माना, ठीक है। इसने क्या किया कि और एग्रेसिव, थोड़ा सा ऊपर जाकर के और एग्रेसिव तरीके से ये क्रॉस हो जाए एक बार कैसे भी करके। तो इसने इसको क्रॉस होने का वेट किया, ठीक है। जब ये क्रॉस हो गया, उसके बाद में इसने हाई और हायर लो रिसेंट पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लोअर का हाई, डाउन चल रहा है ना, लोअर का हाई और लोअर का लो। लो। लोअर का लो ये हो गया, लोअर का हाई ये हो गया। और इसका की पॉइंट जो वो कहीं ना कहीं यहाँ निकल के आ रहा है, 0.5 0.6 लेवल यहाँ निकल के आ रहा है ना। तो 0.5 और 0.6 तो यहाँ निकल के आ रहा है। लेकिन अब आप एक और चीज देखोगे, वो क्या? मल्टीपल विक्स कहाँ कनेक्ट हो रही है? यहाँ पे हो रही है, 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 और यहाँ पे हो रही है, ठीक है जी। चार्ट मान के चलो इधर चल रहा था, तभी तो अपने ड्रॉ किया है रिसेंट वाला हाई और लो, राइट ना। चार्ट यहाँ पे चल रहा होगा तभी तो ड्रॉ कर सकते हैं अपन। यस सर। तो, तो अब इसने क्या किया कि कहीं ना कहीं इसको एंट्री जो है कंफर्मेशन से लेनी है। तो पहला कंफर्मेशन तो इसका लेना है एमए का, ठीक है। तो एमए का सपोर्ट का आएगा लमसम 0.5 लेवल के आसपास आएगा, कहीं ना कहीं। और मल्टीपल ब्रिक्स जहां कनेक्ट हो रही हो प्रीवियस में, उसको एक जोन मान सकते हैं अपन, छोटा सा जोन बना लो यहाँ पे ऐसे। तो इस वाले को अपन आराम से एंट्री मान करके और ऐसे लग दो आप अपना यहाँ पे, ठीक है। और अगर और बढ़िया ऐसे लगना है तो वो रख दो यहाँ पे, इससे ज्यादा बढ़िया नहीं हो सकता ऐसे, है ना। इससे ज्यादा बढ़िया नहीं हो सकता, ये कमजोर एसएल है छोटा, और ये जो है सबसे बढ़िया वाला एसएल है, ठीक है। तो एंट्री यहाँ लो, एसएल यहाँ लगा लो, टीपी यहाँ लगा लो, 2 आर पे कहीं पे, आर 2 आर, इजी भाई साहब, काम हो जाएगा अपना। बस ये सिंपल सी चीजें, इनको कैंडल्स को समझना आना चाहिए और कुछ नहीं है। और नजरें इतनी तेज होनी चाहिए कि ये पैटर्न्स कहीं भी दिख जाए। जैसे कि ट्रिपल वो दिख गया मुझे, तो है ना। एमए वगैरह, एमए का सपोर्ट का आ रहा है, रेजिस्टेंस का आ रहा है, ये सारी चीज देखनी आ जाए, फिब लगाना आ जाए, फिब लगाना तो आता ही है। और मेन चीज जो है वो ये कैंडल्स कैसे खेल रही है, कि बायर्स कहाँ ज्यादा है, सेलर्स कहाँ ज्यादा है, क्या हो क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है। अभी आप चाहते तो यहाँ से लॉन्ग भी कर सकते थे ना,
बताऊं कैसे? मान के चलो ये वाला अभी चार्ट बना नहीं है, ठीक है जी, और यहाँ पे एक की लेवल निकल के आ गया अपना ये वाला। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखो आप बड़ी बड़ी विक्स बन रही है खूब। तो कुछ लोग क्या सोचेंगे कि बड़ी बड़ी विक बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स नीचे ले जाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? यही तो सोचेंगे लोग। लेकिन एक चीज और देखो, वो क्या है, वो ये है कि सेलिंग की कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी बन रही है और लगातार बन रही है ना? और बाइंग की कैंडल देखो कितनी छोटी छोटी बन रही है, और एक ये बन गई और एक दूसरी ये बन गई, और इसकी भी विक देखोगे आप तो ऊपर विक है। तो इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है ना कि बाय। ये समझ में आना चाहिए मेन चीज। अगर ये समझ में छोटे में टाइम फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो इसको फिर बड़े टाइम फ्रेम में खोल लो, वहां समझ में आ जाएगा और अच्छे से। समझे जी सब? या फिर अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो और छोटे में खोल दो, वहां पे शायद हो सकता है और समझ में आ जाए, है कि नहीं? वो छो छोटा बड़ा करके और जो है तब चलता है सिस्टम। और देखते आए क्या बोलता है। because of these two reversal points. As price came back up, you had your reversal short trade setup off of this level through the multiple long wicks. Then step 2, you had your breakdown and trend change confirmation through the bearish momentum candle and through the continuation of the new downtrend. Steps 1 and 2 give you your bearish bias and bearish momentum. This then takes you to step 3, which is to look inside of this new moving downtrend for an intraday short trade setup to occur so that you can trade with this bearish momentum and with this new downtrend. So on the right is the 4-hour time frame of the same asset. Your trade setup here is this same area here on the lower 4-hour time frame. Again, you are looking inside of this new moving downtrend, but on this lower time frame for a continuation short trade setup so that you can trade with this bearish momentum. And that continuation trade setup occurred right here at this area of confluence. Key level because of this reversal point, moving average that crosses, fib level and area of value that also lines up. And once price reached the area of confluence, you had multiple long wick candles reacting to the level. Then, once this bearish momentum candle bounced off of the area of confluence, this confirms that the pullback is over and that the larger moving downtrend can continue. And this is when you would look for an exact short entry point through the lower intraday timeframes using our key entry and exit strategy. Now, moving on to the next continuation variation. Here's the anatomy of the setup. Using a continuation entry during a trend trade through an intraday pattern formation. So step 1, you first need to identify a trend trade setup and trigger event to give you your directional bias and momentum for the trade. Step 2, you need the breakout trend change confirmation that validates the trade setup. And step 3, look inside of this next leg of the moving uptrend on a lower time frame for any pattern to form, followed by a break above before taking a long continuation entry. So let's show this right on the charts. On the left is the 4-hour time frame. Now step 1, you have your moving uptrend through the higher highs and higher lows. So you want to trade with the trend. This here is where your long trade setup occurred because of the trend line. अब ये क्या बता रहा है? अब ये बता रहा है कि चलते हुए ट्रेंड में कैसे ले। अभी अब ट्रेंड चल रहा है, इसमें एंट्री कैसे ढूंढे। ठीक है जी, देखते क्या बोलता है। Support level and moving average all crossing, and multiple long wicks reacting to the level. Then step 2, you had your breakout and trend change confirmation through this green momentum candle and continued bullish momentum. Steps 1 and 2 give you your bullish bias and bullish momentum. Again, you could have taken a traditional entry right after this momentum candle here, which is fine and a great entry point, but the continuation entry gives you another entry point into a moving trade. This then takes you to step 3, which is to look inside of this next leg of the moving uptrend for any continuation pattern to form, followed by a break above, so that you can trade with this bullish momentum and with this continued uptrend. So on the right is the 30-minute time frame of the same asset. Your trade setup here is this same area here on the lower 30-minute time frame. This moving trend here, where you are looking inside of for a pattern, is this same area here. So step 3, while this new moving uptrend was occurring, you were waiting and seeing if you would get any continuation pattern to form. It could have been any pattern from this list. But in this case, we had this perfect ascending triangle pattern that formed. Then once you had your break above and in the same direction as the larger moving uptrend and bullish momentum and price making a higher high, this confirms the consolidation is over and that the upwards bullish momentum will continue. And this is when you would look for an exact long entry point through the lower intraday timeframes using our key entry and exit strategy. Now, another key point. The reason we always show a variety of different time frame combinations in our examples is because all our concepts and strategies are high. This confirms. अब इसने क्या बताया है? 2-3 चीजें बताई हैं। पहली चीज तो यह कि डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसका कैसे चला अपन को इस लाइन से पता चला, एमए वाली से, क्योंकि ये एमए लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है सर। अब क्या है कि इसने एमए को क्रॉस कर दिया और उसका अब कहीं ना कहीं क्रॉस करने के बाद में प्रॉपर क्रॉस यहाँ हुआ है। ठीक है, क्रॉस करने के बाद में इसने जो है उसका आप सपोर्ट ले लिया। पहले क्या रेजिस्टेंस ले रही थी यहाँ पे, अब सपोर्ट ले रही है। तो
ये चीज पता चल गई अपन को, ट्रेंड चेंज हो गया है ना। ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन तो हालांकि यहीं से मिल गई थी इस जगह से, लेकिन और कंफर्मेशन जो यहाँ से मिल गई अपन को एम ए के जरिए। ठीक है जी। और दूसरी चीज, इसने जो है एक लेवल मार्क कर दिया यहाँ पे, सपोर्ट लेवल। ठीक है जी। और तीसरी चीज क्या है कि थोड़ा सा और ऊपर जा करके यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अच्छा, लेकिन एंट्री किधर लेगा यो, देखते हैं क्या confirms the लेगा। consolidation is over and that the upwards bullish momentum will continue. And this is when you would look for an exact long entry point through the lower intraday timeframes using our key entry and exit strategy. अच्छा, ये है सिस्टम। तो ये बोल रहा है कि एंट्री जो है वो यहाँ पे लेगा वो, यानी कि इतना वेट करके पहला इसने यहाँ पे कंफर्म किया, यहाँ इसका कंफर्मेशन किया, सॉरी क्या कहते हैं, एम ए का कंफर्मेशन लिया, और ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन लिया, और क्या कहते हैं, एक पैटर्न का भी कंफर्मेशन लिया, तब जा करके इसने एंट्री लिया यहाँ पे। समझे सर, यहाँ जाके एंट्री लिया इसने इस जगह पे। राइट तो राइट। इतना इतना वेट करना पड़ता है तब जाके एंट्री मिलती है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में भैया यहाँ से तो ब्रेक हो गया है ये, अब तो ऊपर ही जाएगा तो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। अब होगा क्या, ये ससुरा यहाँ से आकर के कहीं नीचे भाग जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये सारी जो गणित लगाई जाती है ना, वो ऐसी लगाई जाती है, जितने ज्यादा कंफर्मेशन होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड होगी अपनी। तो जितना ज्यादा अपन को जो भी अपन ने पढ़ा है ना, सारा गणित लगा दो। जैसे ट्रेंड लाइन पढ़ी है अपन ने, ट्रेंड लाइन पूरी घुसेड़ दो भाई साहब, है ना। ट्रेंड लाइन कहीं से भी खींच दो, ऐसे वैसे टेढ़ी मेढ़ी जैसी खिंच रही है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम तीन या तीन से अधिक पॉइंट टच होने चाहिए, तब एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनती है। ट्रेंड लाइन के रूल्स में लिखाया था मैंने ये चीज, है ना। और क्या कहते हैं, हायर हाई हायर लो लगा दो, और क्या कहते हैं, फिब लगा दो। सारा ज्ञान यूज कर लो अपना जितना भी सीखा है। ठीक है, फिब लगा दो, पैटर्न्स पढ़े, पैटर्न्स देख लो भैया कहीं पर बनना है क्या। तो जितना ज्यादा ज्ञान यूज करोगे उतनी ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी उतना ज्यादा आपको पता रहेगी कि भाई प्राइस अब कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। ये रहता है सिस्टम। इसमें भी अपन जो है केवल प्रेडिक्ट करते हैं भाई कि ऊपर जाता है कि नीचे नीचे जा सकता है। वो क्यों प्रेडिक्ट करते हैं अपन, वो इसलिए करते हैं प्रेडिक्ट कि मार्केट में अभी जो चीजों को देखते हुए वो बायर ज्यादा इंटरेस्टेड है या फिर सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है। भाई मार्केट काम कैसे करता है, ऐसे तो है नहीं कि मैं चाहूं तो मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाऊं, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सारा ये डिपेंड तो करता है सेलर और डिपेंड करेगा हाँ हाँ, कि मार्केट टोटल किधर नंबर ऑफ जाएगा। सेलर। हाँ, टोटल सेलर्स कितने हैं, टोटल बायर्स कितने हैं, और बायर ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये पता कैसे चलता है। वो ये चीज टेक्निकल एनालिसिस से पता लगती है। समझ रहे हैं ना। ठीक। वो टेक्निकल एनालिसिस के पता लगती है कि भाई अपन ने पैटर्न बना दिया यहाँ पे। तो ये पैटर्न क्या बोलता है, ये सीधी सीधी सी बात ही बोलता है कि भाई साहब एक बार, दो बार, तीन बार एक ही रेजिस्टेंस पे हथौड़ा मारा जा रहा है, बार 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 बार। है ना। तो अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ यस। कि वीक हो गया। वीक होने के बाद क्या है, टूटेगा, डेफिनेटली सी बात है भाई। तो ये टूट गया यहाँ पे। हम्म इसका भाई जब हम्म, बार बार थोड़ा मारा जा रहा है यहाँ पे, तो सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि बायर ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं इसको, है ना। तो राइट वो टेक्निकल राइट। एनालिसिस यही होता है, और कुछ नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस। बस वो यही है, ये पहचान लो कि भाई बायर्स क्या कहना चाह रहे हैं या सेलर्स क्या कहना चाह रहे हैं। ये है सारा खेल। अब हम्म लोग क्या है, इसको इसको ले लेते हैं गलत वे में, गैम्बलिंग में। वो कैसे, मैं बताऊं आपको। हम्म, वो ऐसे, वो क्या सोचते हैं कि भाई इसको प्रिडिक्ट करना पड़ता है मार्केट को कि यहाँ से ऊपर जा सकता है या यहाँ से नीचे जा सकता है। ऐसा नहीं काम करता भाई, मार्केट कभी भी ऐसा काम नहीं करता। मार्केट काम करता है वो बायर्स और सेलर्स पे काम करता है कि बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है या सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो ना भैया। राइट ये चक्कर है राइट। सारा। और देखते क्या बोलता है। Now, another key point. The reason we always show a variety of different time frame combinations in our examples is because all our concepts and strategies work the same on all time frame combinations. Whether you trade higher time frames, medium time frames, or very low time frames, these concepts work the same. So going in the opposite direction in a downtrend, this works the same. You identify a trade setup, breakout trend change confirmation,
Then look for an intraday pattern followed by a break below before looking for short entries. Now, moving on to the final continuation variation. Here's the anatomy of the setup. You first need to identify a trade setup and trigger event to give you your directional bias and momentum for the trade. Step 2, you need the breakout trend change confirmation that validates the trade setup. And step 3, look inside of this next leg of the moving downtrend on a lower time frame for an intraday short trade setup. So let's show this right on the charts. On the left is the Kiwi dollar daily time frame, and on the right is the Kiwi dollar 2-hour time frame. So again, step 1 is to find the trend trade setup, which occurred here. You had a double top. अब ये क्या है, अपना दूसरा मेथड बता रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक चार्ट है जिसका इसने डेली टाइम फ्रेम और 2 आवर टाइम फ्रेम खोला है ना। अब ये ठीक जो है। 2 आवर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला जो एरिया ना, ये रहा यहाँ पे 2 आवर वाला। ठीक है जी। और डेली में इसने क्या किया, डेली में इसने की लेवल निकाल लिया यहाँ पे, इस जगह पे, कि ये अपना रेजिस्टेंस बन के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। रेजिस्टेंस कैसे बन रहा है, क्योंकि मल्टीपल कनेक्ट होने चाहिए, मल्टीपल यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं। और इसकी इसने हाफ बोर्ड इसलिए ले लिए, क्यों लिए पता है? इसका रीजन क्या है हाफ बोर्ड लेने का? वो ये है कि मल्टीपल कनेक्ट होने चाहिए। अभी देखो मान के चलो मैं इसको यहाँ पे ले लेता इस जगह पे, ठीक है, यू करके ऐसे बना देता है, तो फिर क्या है, ये इतना एरिया रह रहा है यहाँ पे, राइट ना। तो अब अगर मैं मान के चलो इसके हिसाब से लेता हूँ यहाँ पे यो, तो फिर क्या है कि यहाँ पे टच हो रहा है ये वाली चीज, और ये वाली चीज यहाँ पे टच हो, इसकी विक टच हो रही है यहाँ पे, है ना, गौर करके देखते हैं अपन। तो यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे क्या है कि इतना एरिया फिर से रह जा रहा है। तो अपन क्या है कि ना तो इसको लेंगे ऊपर वाले को, ना नीचे वाले को लेंगे, अपन एक जोन बना देंगे यहाँ पे। सादा सिंपल सी बात ये है। तो उस जोन के हिसाब से जो है ये एक वो निकल के आ गया रेजिस्टेंस। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। pattern right at the key resistance level, which again is your short trade setup and gives you your downtrend bias. So step 2, your trend change confirmation came through the lower low and price continuing down. Steps 1 and 2 give you your bearish bias and bearish momentum. This then takes us to step 3, which is to look inside of this next leg of the moving downtrend, but on this lower time frame for a continuation short trade setup. And that continuation trade setup occurred right here. अब ये बोल रहा है कि इसने डेली टाइम फ्रेम खोला जिसमें इसको पता लगी कि ये वाली चीज टूट चुकी है। मतलब कि कहने का मतलब ये सीधा सीधा सा क्या मालूम है कि पहले तो अप ट्रेंड चल रहा था ऐसे, अब ये जो है यहाँ से कहीं से डाउन ट्रेंड में आ गया ऐसे। तो इसको पता चल गया कि भाई साहब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है। और दूसरी चीज इसने पता की कि डाउन ट्रेंड जो है वो काफी हैवी है, अग्रेसिव वो है सेलिंग। ठीक है जी। तो इसने क्या किया, ऊपर आने का वेट किया, यहाँ पे इसने ऊपर आने का वेट किया, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं यहाँ पे, क्योंकि उतनी बाइंग हुई और उतनी सेलिंग हो गई इंस्टेंट। ठीक है जी। फिर इसने फिर से वेट किया, तो अब की बार तरीके से आया ऊपर। तो यहाँ पे इसने अपना जो है एक पॉइंट निकाल लिया। अब इस पॉइंट को क्या है, यहाँ पे एंट्री कहाँ लेनी है, वो चाहता तो एंट्री यहाँ पे भी ले सकता था, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे ले लेता, लेकिन उसने इस जगह पे क्यों नहीं ली पता है? उसने इस जगह पे इसलिए ली क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए रहते ना, इधर एक ही कंफर्मेशन मिल रहा है बस, ये वाला वीक है, ये वीक कंफर्मेशन है। तो उसने क्या किया, इस वाले एरिया को थोड़ा छोटे में खोल लिया, मतलब कि बड़े में नहीं मिल रही एंट्री तो अपन छोटे में लेके देखेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में जब इसने खोला तो उसमें इसने सबसे पहले तो लगा दिया भैया एम ए वाली लाइन लगा दी। ठीक है जी सर। और इसने एक ट्रेल लाइन खींच दी, और दूसरा इसने क्या किया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट किया होगा ऐसे प्राइस, ये जो है ना ऐसे बन रहा है, तो एक्यूमुलेट किया होगा, तो इसलिए इसने इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने का वेट किया भाई, कि ये वाला पॉइंट ब्रेक होना चाहिए। ठीक है जी। एक तो रखी तो नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। अच्छा अच्छा, ठीक है जी सर।
तो ये चाहता तो एंट्री यहाँ पे भी ले सकता था कहीं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो इस जगह पे भी ले सकता था यार एंट्री, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे लेने में, है ना। लेकिन इसने इस जगह पे क्यों नहीं ली पता है? हम्म पता है राहुल भाई क्यों नहीं ली इसने इस जगह पे? इस जगह पे इसलिए इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे एक देखोगे आप तो ऐसे करके ऐसे पैटर्न सा बनना है कि नहीं? हम्म। और ये पैटर्न क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो नीचे वाला जो लेवल है ये, ये नीचे वाला जो है वो रेजिस्टेंस है, बार बार मतलब उस पर सपोर्ट ले रहा है वो। हाँ इस पे सपोर्ट ले रहा है बार 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 बार। तो एक काम करते हैं, इसको तो इसका टूट ही मतलब ये जाने देते हैं। ये ब्रेक हो सकता है। हाँ तो ये ब्रेक हो सकता है। तो वही तो उसने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ना लेकर के, इस जगह पे एंट्री ना लेकर के उसने क्या किया, इसको ब्रेक होने दिया कि तू ब्रेक हो जा आराम से। ठीक है, ब्रेक होने के बाद में राहुल भाई ध्यान देना, रीटेस्ट का वेट किया इसने, तब जाके एंट्री लिए यहाँ पे, इस जगह पे एंट्री लिए। हम्म तो पेशेंस देख रहे हो इसका कितना है, बहुत तगड़ा पेशेंस है। मतलब कि भाई ना यहाँ ली इसने, और ना इस वाली जगह पे ली, और ना इस वाली अच्छा। जगह पे ली, यहाँ जाके एंट्री लिया। तो उसका मतलब यही है कि पेशेंस जो है वो बढ़िया रहता है। At this area of confluence. Key resistance level, trend line that crossed, moving average that crossed, and once price reached the area of confluence, you had a long wick candle react to the level. Then, once this bearish momentum candle bounced off of the area of confluence, this confirms that the pullback is over and that the क्या कह रहे हो? स्पीड थोड़ी तेज है इसकी, थोड़ा कम कर लो भैया। अच्छा कम करूं? ओके, मैंने सोचा यार। जल्दी हो larger जाए। moving downtrend आपको can क्लिक continue. करने में अब As this सही is है? when you would look for an हैं? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, चलो चलो। ओके। exact short entry point through the lower intraday timeframes using our key entry and exit strategy. So going in the opposite direction, this works the same, except everything is flipped. You identify a trade setup, breakout trend change confirmation, then you look for an intraday long trade setup. Now, what we have covered in this video is only scratching the surface. Continuation entries are only one of the many price action methods we use to enter into trades. There are many more advanced. हो गई कंप्लीट, बस इतनी सी थी, यही था भैया। अब इसको ठीक एक ठीक बार ठीक। देख लेते हैं अपन। हाँ एक बार उस पे चार्ट पे देख लेते हैं क्या चक्कर चल रहा है। तो अगर ये लिखे हों, मैंने कहा लिखे नहीं, कॉपी लेके नहीं बैठा मैं आज। तो खाओगे नहीं तुम? हाँ अपन वैसे ही देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो आप, अभी किसका चार्ट खुला हुआ है, ये बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है, बिटकॉइन का। ठीक है जी, बिटकॉइन का अपन जो है खोलते हैं 4 आवर का चार्ट। ओ, ठीक है जी सर। तो उसने पहली क्या चीज़ बताई थी, मैं तो ध्यान में भूल गया। पहली शायद अप ट्रेंड में बताई थी जिसमें फिबोनाची लग रहा था, और क्या लग रहा था, एमए की लाइन लग रही थी शायद। एमए इसमें छोटा वाला यूज होगा। और छोटा भी है क्या मेरे पास? ठीक है। और हाँ, और एक फिब था। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है। हाँ तेरी की क्या खोल दिया मैंने। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ट्रेंड लाइन बनाओ भाई, सबसे पहला काम जो है। तो ट्रेंड लाइन बनाते हैं अपन, देखते हैं। ये बन रही ट्रेंड लाइन, राइट ना, मल्टीपल लेवल टच होनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे अपन?
और हायर हाई और हायर लो, ये भी मेन चीज़ है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था ये प्राइस, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। फिर अप ट्रेंड कहाँ से टूटा ये, अप ट्रेंड टूटा यहाँ से, इस जगह से। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो भाई ये अपना एक पॉइंट हो सकता है। लाल क्यों हो रखा है। इसको रेजिस्टेंस ही मान सकते हैं ना, इस वाले पॉइंट को। हाँ, ये इस चीज के लिए रेजिस्टेंस है, इस चीज के लिए रेजिस्टेंस है, इस चीज के लिए सपोर्ट हुआ, राइट ना। हम्म। और बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा हूँ तो। अब यहाँ पे हुआ क्या कि प्राइस डाउन आ रहा था, और ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, फिर ये हाई हो गया, फिर लो का अप हो गया, ये वाला लो मान लो, ये वाला लो, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि प्राइस ने इस वाले हाई को तोड़ दिया यहाँ पे, इस जगह पे अगर तोड़ा है, ठीक है जी। तो अब क्या है, ये हमारा बन जाएगा लो। लो तो पहले भी था ये, लेकिन अब हायर हाई वाले के लिए हायर लो बन जाएगा ये। मतलब पहले लोअर लो था, अब ये हायर लो बन जाएगा। तो लो ये हो गया, उसके बाद हाई ये, फिर लो ये, फिर हाई ये, और फिर लो, इससे ऊपर है ना, हाँ ये। और उसके बाद में हाई इसके ऊपर बनेगा, कौन सा वाला, उसके बाद हाई बनेगा ये, फिर बनेगा लो ये, और फिर उसके बाद में इसको कौन सा क्रॉस कर रहा है, अच्छा क्रॉस किया ही नहीं, तो हाई यहाँ पे बन रहा है। कुल मिला के बात ये है ना। तो अपन का ये क्रॉस किया था, ये अपन ने क्या मान लिया अपना, एक लेवल मान लिया, ठीक है जी सर, बढ़िया बात है। अब अपन को क्या करना है, ए में लगा के देखना है, ए में लगा देंगे भाई साहब, ए में लगा दिया, और चलो भाई साहब ए में लग गया। ए में मैं एक काम करता हूँ यार, दो ज़्यादा हो जाएंगे, एक ही लगा लेता हूँ। कौन सा एम है यार, ये 15 है, कौन सा है, 20 50, 50 वाला है, चलो ठीक है, 50 वाला सही है ना। की लेवल निकल गया अपना, एम ए का लेवल निकल गया। अब अपन को तीसरी चीज जो लगानी है वो फिब। फिब कैसे लगाएंगे भाई, लो और हाई, फिर सॉरी, लो हाई, लो हाई, रिसेंट वाला लो हाई कौन सा है, रिसेंट हाई जो है वो, यहाँ से हाई ये बन गया, फिर लो ये, फिर हाई ये, और लो ये, नहीं लो ये, बट फिर ये वाला इनवैलिड हो जाएगा अगर ये लो है तो, ये हाई और ये लो, ठीक है जी। बढ़ाओ और उस ना। है क्या, नहीं कुछ नहीं। ओके। अब उसके बाद में फिर से हाई बनेगा, वो बन गया ये, फिर लो ये, चलो लो तो मिल गया, लेकिन हाई नहीं मिला। देखो जी मैं बताऊँ आपको सीधा सा गणित, कि कहीं ना कहीं जो है वो इस एरिया में निकल के आ रहा है अपना 0.5 0.6 लेवल। एम आई राइट भाई, है क्या नहीं। अरे हाँ ना में तो जवाब दे दिया करो भाई। हाँ सही है, सही है, सही है। कैसे निकल के आ रहा है, पता चली वो कैसे निकल के, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। हाँ अब सही है। मैं तो आपकी स्क्रीनिंग हम्म। ब्लैक में है ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो बात हो गई। तो एक मिनट रुको, वही मैं सोचा था, तुमको शायद स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी। क्या क्या दिक्कत आ रही है एक बार अरे बताना मुझे। बढ़िया दिखाई दे रही है, मैं दिखाता हूँ अभी। इसका मोबाइल काम नहीं कर रहा है। ऐसा है क्या, नहीं और थोड़े अक्षर बड़े कर देता हूँ। iPhone 17 Pro है। ये देख लो क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बता दो। बड़ी। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी और लाइट कर देता हूँ। अरे सही दिखाई दे रहा है शुभम भाई। अच्छा, हाँ, आप तो बताओ। अपनी नहीं बढ़ानी और मोबाइल नहीं बढ़ानी।
अबे धत तेरे की। अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें। अरे वैसा ही रहने दो जैसे पहला था। अब देखना, अब दिखाई दे रहा है। सही है सही है। एक बार ये पीछे का क्या बोलते हैं इसको, वाटर मार्क। अरे उस पर डाल आप देता देखो, मैं। आप दे रहा है, दिखाई बढ़िया। हाँ जी सर, अब तो सही दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये लेवल निकाल लिया अपना। कौन सा लेवल है ये, फिफ्थ लेवल है। ठीक है सर, फिफ्थ लेवल ही तो हुआ, ये फिफ्थ लेवल निकाल लिया मैंने। और दूसरी चीज देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पर कई बार जो है प्राइस कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ घोटाला, है ना। और अपना जो है ये निकल के आ रहा है, ट्रेंड लाइन, ये जा रही ट्रेंड लाइन, और एम ए वाली लाइन भी ये जा रही। तो अपन को क्या करना है, कहीं ना कहीं वेट करना है इसका आने का, या फिर एक और हाई बन सकता है, इससे पहले हाई भी बन सकता है, ध्यान रखना। नीचे आने से पहले हाई बन सकता है एक और। ठीक है जी। तो वैसे बेस्ट जो एरिया रहेगा वो यही रहेगा, यहाँ से बाई करने का, और एस एल जो यहाँ रखने का, और टी पी ससुरा टूआ रखने का। एक बार मैं लगा के छोड़ जाता हूँ, कल देखेंगे इस ट्रेड को क्या रहता है कि नहीं। लॉन्ग की ट्रेड, और यहाँ पे ली जाएगी, ऐसे लगेगा अपना सबसे बेस्ट, ऐसे यहाँ बिटकॉइन रहेगा हाई इस जाने जगह वाला है। है क्या। बिटकॉइन हाई जाने वाला है, आज का न्यूज था ट्रम्प का कुछ बिटकॉइन को लेके। आज नहीं थी, कल थी शायद न्यूज तो। देखो जी, मैंने ये तो है, आज ये देखा। बन रही है मेरे हिसाब से ट्रेड। अब इसको पूछ सकते हो आप, क्या आपको समझ में नहीं आया वो चीज। नहीं समझ में आया, पहले स्टडी करेंगे तभी तो पूछेंगे कल। अच्छा, हाँ ये भी बात सही अभी है। तो आपने समझाया तो समझ में आ गया। बात तो आपकी सही है। तो कोई पूछने लायक क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाया है बिल्कुल। अच्छा, अब एक ये चीज और चार्ट लगा, देखेंगे। छोड़ दो इसको, और इसका जो भी स्क्रीनशॉट या लिंक हो वो भेज देना। फिर हम स्टडी करेंगे इस पे, फिर कल बात क्वेश्चन हम्म, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए, बिल्कुल भेज देता हूँ मैं आपको सर। सही नहीं है भाई? इतना इतना है, और जूम करूँ क्या, इतना बहुत है। लेवल ये निकल के आ रहा है, ये रहा सपोर्ट, ये रहा, और पीछे जाओगे तो ये रहा। अच्छा, एक चीज और देखोगे ना आप, अगर ये जो 0.5 लेवल मैंने जो निकाला है, तो इस पर पीछे ले जा करके देखोगे तो इसकी हिस्ट्री बड़ी लंबी है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इस जगह पे ये तो ससुरा पता नहीं क्या था, इस जगह पे, यहाँ, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ, और ये इसका दूसरा लेवल निकल रहा है यहाँ पे ऊपर। तो देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से वो है जोन, यहाँ से बाइंग हो सकती है बढ़िया। अगर ये हाई नहीं बनाता है एक और, तो अगर एक और हाई बना देता है तो उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा पूरा सिस्टम। इसका लिंक भेजूँ आपको, चार्ट का। हाँ, भेज दो। ठीक है जी। कितना, इतना बहुत है इतना, या और जूम करूँ। पेस्ट। रिपोर्ट तो ठीक है दीजिए। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तो ठीक है दीजिए। नहीं, अगर रिकॉर्डिंग करने की तब नहीं। सही है, सही है। सही है। देख लो, लिंक खुल रही है क्या, खुल जाएगी वैसे तो। अमन ने खोली है दूसरे मोबाइल पे, बोल रहे ना अच्छा, वो। हाँ जी, तो फिर ये था सिस्टम, समझ में आया कुछ इसमें, क्यों राहुल भाई। आया आया
आया, समझ में चलो आया। बढ़िया है, समझ में आना चाहिए, बस यही है। तो फिर बहुत है फिर आज के लिए, और आप प्रैक्टिस करो इस चीज बिल्कुल। को। कोई दिक्कत आती है तो मेरे को नहीं बहुत। बताना आप बेझिझक, हाँ। यस। है ना। चलो एक जी सवा ठीक है। घंटे की क्लास बहुत होती है, अगर आराम से कोई भी टॉपिक करना है ना तो बहुत होती है। सही बात है जी। बाकी पढ़ाने एकदम। को तो कितना भी पढ़ा तो फिर वो समझ में भी नहीं आता जब चीजें इधर उधर हो जाती हैं तो। हाँ फिर ऊपर से जाता है। हाँ, फिर हाँ ही हाँ होती है बस, और कुछ नहीं होता। चलो जी, चलो जी ठीक है ठीक फिर, है राधे शुभम राधे। भाई। ओके, गुड ओके। नाइट। किधर से बंद होगी।